Good morning, friend. I'm here today to represent part B, and I have divided my lecture in two part A and part B. पार्ट ए को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पार्ट बी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यानी CUCT के प्लांट साइंस का पार्ट बी है। देन लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 51. Which of the following statement best describe what conservation biologists mean by the rapid loss of biodiversity? Means rapid जो loss है biodiversity का उसको best कौन describe कर रहा है? So let's see. Introduced species such as starling and zebra mussel have rapidly expanded their extinct? No. Harvest of marine fishes such as cod and bluefin tuna are declining? No, इनके declining से rapid biodiversity को ज़्यादा loss नहीं होगा. The current species extinction rate is as much greater than at any time in the past 1 lakh year. And let's see the D. Many potential medicines are being lost as a plant species become extinct. तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि जो करंट स्पीसीज एक्सटेंशन है वो ज्यादा हो रहा है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 52. Ospreys and other top predator are most severely affected by pesticide because they, so let's see, are especially sensitive to chemicals. No, ये chemical से ज़्यादा sensitive नहीं होती हैं. Then have very long lifespan. No. Store the pesticides in their tissue. हाँ बिल्कुल, क्योंकि इकोलॉजी में हम देखते हैं कि फूड चेन के अंदर जो टॉप प्रेडेटर होते हैं उनके अंदर फूड चेन के जरिए किसी भी पेस्टिसाइड का एक्यूमुलेशन या मैग्निफिकेशन होता जाता है और टॉप प्रेडेटर के अंदर उनकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा मिलती है, तो वो अपने पेस्टिसाइड्स को टिश्यू के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं. So let's see the D. Consume prey in which pesticide are concentrated. It must be correct, but C is the most. Then moving to next question number 53. Which of the following statement regarding competition is incorrect? तो देखते हैं. In general, competition lowers carrying capacity. बिल्कुल सही बात है, कंपटीशन कम होगा तो पॉपुलेशन कम होंगी और पॉपुलेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर कम है तो वो कैरिंग कैपेसिटी पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनके लिए वाइड एरिया प्रेजेंट होता है. देन यानी ये तो इनकरेक्ट नहीं हो सकता. देन मूविंग टू नेक्स्ट. कंपटीशन बेनिफिट्स वन स्पीसीज ओवर अनदर. बिल्कुल, कंपटीशन में एक स्पीसीज अगर कंपटीशन होता है तो किसी को लॉस होता है तो किसी को फायदा होता है. देन ये भी नहीं हो सकता. देन मूविंग टू सी. स्पीसीज विद पार्शियली ओवरलैपिंग निश कैनॉट कोएग्जिस्ट. अगर उनका निश पार्शियली ओवरलैप कर रहा है तो वो एक दूसरे को कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, तो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है. डी भी देख सकते हैं. Any overlap between two population is studied by excluding one of the species. बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं हो सकता.
So option C must be correct. Then moving to next. Which of the following statement represents a demographic transition? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक पॉपुलेशन इकोलॉजी का ही टर्म है. डेमोग्राफी यानी स्टडी ऑफ population ecology. So a population switches from exponential to logistic growth. No, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो डेथ रेट और बर्थ रेट से रिलेट करता है. ए पॉपुलेशन रीचेज ए फर्टिलिटी रेट ऑफ 0. नो. There are equal numbers of individual in all age group. No. A population switches from high birth and death rate to low birth and death rates. इसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं. So the option D must be correct. So demographic transition is a phenomena and a theory which refers and high infant death rates in society with a minimal technology. So then moving to the question next. 55. A blue jay that aids its parents in raising its sibling is increase its. तो ये क्या करती है? इंक्लूसिव फिटनेस को इंक्रीज करती है. एंड व्हाट इज इंक्लूसिव फिटनेस? Inclusive fitness theory suggests that altruism among organisms who share a given percentage of gene enable those genes to be passed on subsequent generation, and in this way an altruistic act that supports the survival of a relative and other individual theoretically enhance their genetic fitness of both the recipient of the act and altruistic organisms. So altruistic है actually है क्या? Inclusive fitness क्या है? तो जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी जो रिलेटिव्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं. देन मूविंग टू नेक्स्ट. 56. An ecologist monitoring the number of gorillas in a wildlife refuge over a 5-year period is studying ecology at which of the following level? तो किस लेवल पर इसकी स्टडी की जा सकती है? पॉपुलेशन लेवल पे. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी बी. देन मूविंग टू नेक्स्ट. 57. ए बर्ड्स एंड स्प्रोट ऑफन फ्रॉम ऑन ट्री स्टम्प्स. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन वुड स्टिमुलेट देयर फॉर्मेशन? सो जो बर्ड हैं एंड जो स्प्रोट हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए जो हार्मोन होता है या उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन. तो ऑप्शन सी मस्ट बी करेक्ट. देन मूविंग टू नेक्स्ट. 58. Which of the following activity of soil bacteria does not contribute to creating usable nitrogen supply for plant usage? Let's see the option A. The fixation of atmospheric nitrogen. हाँ बिल्कुल फिक्सेशन करते हैं और प्लांट इसे यूज भी करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. देन द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयन टू नाइट्रेट आयन. बिल्कुल. द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स. बिल्कुल ये भी करते हैं. द असेंबली ऑफ एमाइनो एसिड इनटू प्रोटीन्स. ये प्रोसीजर जो सॉइल बैक्टीरिया हैं उनके अंदर इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी यहाँ पर वो प्लांट के लिए यूजेबल नाइट्रोजन इस प्रोसीजर से नहीं बना सकते हैं. तो ऊपर के जो बाकी 3 प्रोसेस दिए गए हैं उनमें जो सॉइल बैक्टीरिया हैं वो प्लांट के लिए यूजेबल नाइट्रोजन सप्लाई कर सकते हैं. देन मूविंग टू नेक्स्ट. 59. Which of the following is not a modified stem? तो राइबोसोम्स भी एक मॉडिफाइड स्टेम है,
स्टोलोन्स भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, और कैक्टस स्पाइन्स भी एक मॉडिफाइड स्टेम नहीं है। एक्चुअली ये एक मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है। और जो टेंड्रिल्स हैं ये भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। सो ऑप्शन जो सी है यानी कैक्टस स्पाइन्स है वो मॉडिफाइड लीफ का एग्जाम्पल है। एक्सप्लेनेशन भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी द स्पाइन ऑफ कैक्टाई आर एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स एंड वन द मेन फंक्शन ऑफ स्पाइन इज दे प्रोटेक्ट कैक्टाई फ्रॉम प्रेडेटर। जो स्पाइन्स होती हैं वो कैक्टाई को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं उनके प्रेडेटर से। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। ये क्वेश्चन मसल कॉन्ट्रैक्शन से है। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? जनरली मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम कैल्शियम का रोल देखते हैं। इट्स बाइंडिंग टू ए रेगुलेटरी प्रोटीन that cause a protein to move, exposing actin and binding sites to the myosin head। Obviously सही बात है कि एक प्रोटीन होती है, उसकी 3 सब यूनिट बन होती हैं, आई सी, इस तरीके से 3 सब यूनिट हैं। तो कैल्शियम क्या करता है, इन सब यूनिट से बाइंड करता है। जो सी सब यूनिट है, सी सब यूनिट से बाइंड करने पे इस प्रोटीन का थोड़ा सा कन्फर्मेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और चेंज होने से इसका जो हेड है, जैसे सपोज यहाँ पर हम हेड मानते हैं, तो हेड है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने से मायोसिन है वो इससे क्या कर सकता है, मायोसिन का हेड बाइंड कर सकता है। जस्ट थोड़ा सा कंफर्मेशन है वो चेंज होगा। सो ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू नेक्स्ट 61. Which of the following is the initial acceptor of CO2 in CAM plant? तो CAM plant के अंदर जो initial CO2 का acceptor होता है वो क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। Then moving to next, the majority of fructose absorbed by sperm is used to। तो जनरली जो फ्रक्टोज का जो यूज है वो क्या है, more solute are removed exerting uric acid। So the option D must be correct. Then moving to next, question number 64. In which of the following organism does oxygen diffuse directly across a respiratory surface to cells without being carried by the blood? तो जनरली इस तरीके का जो सर्कुलेशन है ग्रास हॉपर के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्रास हॉपर के अंदर जनरली द ग्रास हॉपर हैव ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देयर बॉडी कैविटीज आर फिल्ड विद ए हीमोलिम्फ, यानी इनके अंदर एक ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, Which of the following cells is not a tissue fixed macrophage? तो Habeas cells है वो भी टिश्यू फिक्स है, एंड देन डस्ट सेल, हिस्टियोसाइट्स, लेकिन जो रेजी सेल्स हैं ये टिश्यू फिक्स्ड मैक्रोफेज सेल्स नहीं है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, earthworms which are substrate feeders। So let's see the option. Feed mostly on mineral substance? No, it's wrong. Filter small organism from the soil? No. Are bulk feeders that ingest a large piece of food? No. Eat their way through the soil, feeding on partially decayed organic matters? बिल्कुल सही बात है, जो अर्थवर्म्स है वो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स को फीड करता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 67,
fossil suggest that the first major trait distinguishing hominins from other primates was। तो जो फॉसिल्स हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो फर्स्ट उनका क्या मेजर ट्रेट है जो होमिनिन्स को अदर प्राइमेट से अलग करता है। तो उनका जो इरेक्ट पोस्चर है यानी जो सीधे खड़े होना है वो उनको अलग करता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 68 molecular comparisons place orthopods under clade Ecdiozoa। Which of the following feature do orthopods have that the basis for the name Ecdiozoa। तो नेम Ecdiozoa किस तरीके से आया? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से? नो, ये मोल्टिंग की वजह से आया, मोल्टिंग ऑफ एन एक्सोस्केलेटन्स। ठीक है, देन मूविंग टू नेक्स्ट। The eggs of seed plants are fertilized within ovules and the ovules develop into। तो ovules किनके अंदर डेवलप होगा? सीड्स के अंदर। Then moving to next, which of the following pathogen is associated with the pseudomembranous qualities। तो pseudomembranous qualities it's referred to a swelling or inflammation of large intestine colon due to an overgrowth of the Clostridioides difficile। तो Clostridium difficile की वजह से जनरली ये एसोसिएटेड होता है। सो ऑप्शन सी sorry A must be correct। Then moving to next, which of the following genes represent a pathogenicity island of Helicobacter pylori। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, उसके अंदर जो पैथोजेनिक जीन है वो कौन सी है? CAGA यानी कैग ए जीन एक विरुलेंट फैक्टर की तरह क्या करता है? काम करता है। ठीक है, देन मूविंग टू नेक्स्ट, डिप्थीरिया बेसिलाई प्रोड्यूस एन एक्सोटॉक्सिन डेट एक्ट टू। तो 72 जो क्वेश्चन है उसमें डिप्थीरिया टॉक्सिन है यानी जो उसका एक्सोटॉक्सिन है वो स्पेशली किसके ऊपर एक्ट करता है? तो वो जनरली प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी यानी ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जो जो एक्सोटॉक्सिन है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, उसे एबिटॉक्सिन भी कहते हैं। और ये एबिटॉक्सिन जनरली जो यूकैरियोट्स का ट्रांसलेशन फैक्टर है, इस ट्रांसलेशन फैक्टर का एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाएगा। और जब ट्रांसलेशन फैक्टर यानी ये काम नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट 73 मेजर डिवीजन इन द जियोलॉजिक रिकॉर्ड आर मार्क्ड बाय। तो जनरली ये किस तरीके से करते हैं? रेडियोएक्टिव डेटिंग? नो। डिस्टिंक्ट चेंज in the life in the types of fossilized life? Yes, it must be correct. Regular time interval measured in millions of years? No. Appearance in a order of prokaryotes, protists and animals, plant and fungi? No. तो जनरली क्या करते हैं? डिस्टिंक्ट जो चेंजेस हैं in the type of fossilized life। Then moving to next question 74 which of the following classes of antibodies do not have a hinge region। तो जनरली जो IgM है और IgE है उनके अंदर हिंज रीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं एंड देन प्रोलिन से रिच होती हैं और इनका काम क्या होता है? फैसिलिटेटिंग इंट्रैक्शन करना और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का ये
काम करती हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, Which of the following components is known to activate the classical complement pathway? इम्यूनोलॉजी के अंदर एक पाथवे चलता है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, और जनरली ये जो पाथवे है किस तरीके से एक्टिवेट होता है? जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं? इस पाथवे को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, सो यहाँ पर आपके जो 75 है उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। देन मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन 76, which of the following cellular events is not directly associated with mitochondria? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एपोप्टोसिस भी होता है, एटीपी सिंथेसिस भी होता है, तो ये दोनों ही नहीं है। सेल साइकिल को भी कंट्रोल करती है माइटोकॉन्ड्रिया। देन प्रोटीन का डिग्रेडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, तो जो सही ऑप्शन यहाँ पर है वो डी है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, a large and a important group of compound that can be made by repetition of simple isoprenoid units is called। तो जनरली 5 कार्बन की कुछ आइसोप्रेनोइड्स यूनिट होती हैं, और ये 5 कार्बन की बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़कर टर्पेनोइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये एक तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, Which of the following is a TH2 polarizing cytokine? यानी ये TH2 सेल्स है, TH1, TH2 ये T सेल के पार्ट है जो इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जनरली जो है IL-9 का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो IL-9 क्या है? एक पोलराइजिंग साइटोकाइन है, यानी इन सेल्स को पोलराइज करने का काम करता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है? न्यूक्लियस। देन मूविंग टू नेक्स्ट 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद मैप काइनेज। तो देखिए मैप काइनेज एक सिग्नलिंग से रिलेटेड है, तो मैप काइनेज के अंदर क्या क्या नहीं आता, क्या नहीं होता मैप काइनेज पाथवे के अंदर? फॉस्फोराइलेशन ऑफ अपस्ट्रीम रिसेप्टर बिल्कुल होता है। डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ फॉस्फेटेज, यानी पहले फॉस्फोराइलेशन होता है, उसके बाद जब आप सिग्नलिंग में देखें तो ऑटो डिफॉस्फोराइलेशन भी होता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है। एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम टारगेट्स, बिल्कुल सिग्नलिंग पूरा फॉस्फोराइलेशन पे ही बेस्ड है। देन साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस ट्रांसलोकेशन, नो, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस ट्रांसलोकेशन मैप काइनेज के अंदर नहीं होता, यानी इससे एसोसिएट नहीं करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी डी। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं वो वाटर डिस्पोजल का भी काम करती हैं, स्पोर्ट का भी काम करती हैं, फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्टाइल रेगुलेशन नहीं करती हैं, क्योंकि जो अम्बीवा हैं उनके अंदर जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल्स रेगुलेशन का वर्क करती हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not associated with type-1 interferon signaling leading to antiviral state in nucleated cells। तो प्रोटीन काइनेज आर भी रिलेट करता है, 2,5 ओलिगो एडेनाइलेट सिंथेज भी, सॉरी जो ऑप्शन बी में 2,5 ओलिगो एडेनाइलेट सिंथेज है ये टाइप-1 इंटरफेरॉन सिग्नलिंग से एसोसिएटेड नहीं है। MXA भी है, गाटा 3 भी है, बट जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पर इस तरीके की सिग्नलिंग से रिलेट नहीं करता है। देन सो हियर द करेक्ट ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन बी। देन मूविंग टू नेक्स्ट,
Which of the following processes is responsible for mediating the crossing of oxygen and carbon dioxide through the cell membrane? तो जनरली वो किस तरीके के जो सेल मेम्ब्रेन को O2 एंड CO2 हैं वो क्रॉस करती हैं, तो ये एक तरीके का क्या है, रैंडम डिफ्यूजन है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी D in 83. Then moving to question next. Which of the following signaling pathway is followed by T cells in response to antigenic stimulations? तो T cells क्या करती हैं कि जब भी एक्टिवेट होती हैं तो वो पास वाली जो T cells हैं उनको एक्टिवेट करती हैं. तो इस तरीके की जो सिग्नलिंग होती है, सॉरी जो T cells हैं, जैसे सपोज एक T cells है वो क्या करती है, खुद को ही एक्टिवेट करती है. तो ऐसा कोई सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो खुद को ही एक्टिवेट करता है, ये किस में आता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर आता है. और इस तरीके की प्रोसेस टी सेल्स के अंदर होती हैं. जब भी इन्फेक्शन होता है तो काफ़ी टी सेल की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना होता है. देन मूविंग टू नेक्स्ट 85. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर? तो सेल सरफेस रिसेप्टर की लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है, GPCR यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. देन मूविंग टू नेक्स्ट. All of the following are cell membrane associated TLR except. तो टोल लाइक रिसेप्टर है, तो 3 है वो इससे सेल मेम्ब्रेन से रिलेट नहीं करता है. देन मूविंग टू नेक्स्ट. चारकोट लाइडेन क्रिस्टल्स इन स्पूटम इज ए सजेस्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? तो जनरली जो इस तरीके के क्रिस्टल हैं वो जो पेशेंट एलर्जिक जिनको डिजीज़ है, अस्थमा है, पेनक्राइटिक इन्फेक्शन है, उनके अंदर इस तरीके के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन अस्थमा. सो द चारकोट लाइडेन क्रिस्टल्स आर माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल कंपाउंड of eosinophil protein gelatin 10 found in a people who have allergic disease such as asthma, pancreatic infection and pancreatic pneumonia or ascariasis. Then moving to question 88. Major basic protein is secreted by which of the following cells? तो major basic protein है वो किसके जरिए secrete की जाती है, eosinophil cells हैं वो secrete करती हैं. Then moving to next. Which of the following regions is the thermoregulation center responsible for the induction of fever in the periodic anterior hypothalamus? तो जनरली यहाँ पर जो OVLT है यानी ऑर्गेनम वैस्कुलोसम ऑफ लेमिना टर्मिनलिस है, ये फीवर को कोज करने का काम करता है. देन मूविंग टू नेक्स्ट 90. In C3 cycle of the photosynthesis, which of the following is primary receptor of CO2? तो CO2 का प्राइमरी रिसेप्टर कौन होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. देन मूविंग टू नेक्स्ट 91. सेट्रिमाइड अगार इज यूज्ड फॉर द सेलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ. तो जनरली जो स्यूडोमोनास अरिगोनोसा है उसका सेलेक्टिव आइसोलेशन करने के लिए इस तरीके का अगार यूज किया जाता है. देन मूविंग टू नेक्स्ट. Which of the following pigments is produced by Serratia? तो सेरेसिया जो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं, पायरोवर्डिन. और जो सेरेसिया है इज ए रोड सेप्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 93. What prevents horses and donkey from hybridizing to form a new species? तो डंकी और जो हॉर्स हैं उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, इसका मेन रीजन क्या है कि वो वायबल गैमेट्स को यानी दे डू नॉट प्रोड्यूस वायबल गैमेट्स. तो लिमिटेड हाइब्रिड फर्टिलिटी उनके अंदर पाई जाती है. ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट. देन मूविंग टू नेक्स्ट. इन ए पॉपुलेशन विद 2 एलील्स, 2 एलील हैं पॉपुलेशन के अंदर, एक कैपिटल बी है और एक दूसरा क्या है, स्मॉल बी. द एलील फ्रिक्वेंसी जो स्मॉल की दी हुई है यहाँ पर कितनी है, 0.4 है. एंड
जो कैपिटल बी है वो किस पे है, स्मॉल बी पे डोमिनेंट है। सो व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप इफ ए पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम्स। तो रिसेसिव का यानी आपके पास बी का कितना है, 0.4 आपको दिया हुआ है, ठीक है। देन जो कैपिटल बी है उसका आपको फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल बी यानी हम इसे पी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर से नोट करते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर 0.4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.4 इंटू 0.4 तो कितना आ गया यहाँ पर, सॉरी 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 यानी 0.16 आ गया। देन अगर हम इसका देखें क्यू स्क्वायर का तो 0.6 बच गया है, सॉरी पी स्क्वायर का तो 0.6 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 36.36 आ जाएगा। So option B must be correct. Then moving to next. Which of the following is the precursor for ethylene biosynthesis in plant? तो इथाइलिन बायोसिंथेसिस का जो प्रिकर्सर होता है वो क्या होता है, मेथियोनिन, यानी मिथियोनिन एमाइनो एसिड से ही इथाइलिन हार्मोन्स का बायोसिंथेसिस किया जाता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 96, intracellular transport in mammalian cells through vesicular fusion regulated by which among the following GTPase। तो एक GTPase प्रोटीन होती है जो आपकी सेल्स हैं, मेमेलियन सेल्स हैं, उनके अंदर इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करती है और वो प्रोटीन कौन सा है, रैप। ये एक GTPase प्रोटीन है यानी जी प्रोटीन सही। देन मूविंग टू नेक्स्ट 97, रो फैक्टर इन प्रोकैरियोट्स टर्मिनेट्स इन ऑल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ। तो रो फैक्टर है यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, एक तरीके का डीएनए आरएनए हेलिकेज है, ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का काम करता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेज। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी सिंथेज है यानी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आपने देखे होंगे टाइफेस्ट कॉम्प्लेक्स यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड, इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स 5 पे होता है वो एटीपी सिंथेज होता है और उसको ओलिगोमाइसिन क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 99, इन ट्रांसलेशन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कैटालाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। दो अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है वो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के जरिए किया जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, हैट मीडियम से है, जनरली ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हैट मीडियम यूज करते हैं जिनमें क्या करते हैं, कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स को अलग करते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंग्रेडिएंट ऑफ हैट मीडियम फॉर सेलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स डिस्क्राइब बाय कॉलर एंड मिलस्टेन्स इन 1975। तो हैट का मतलब ही क्या होता है, जो आपके पास हैट मीडिया है HAT, हैट का मतलब क्या होता है, H यानी हाइपोजेंथिन, A मतलब अमाइनोप्टेरिन एंड T का मतलब होता है थाइमिडिन। तो जो थायोफिलिन्स है वो इसका पार्ट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन C मस्ट बी करेक्ट। सो थैंक यू फ्रेंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2019 का प्लांट साइंस का पेपर आपका कंप्लीट हो गया है एंड देन जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके पेपर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो थैंक यू अगेन।